Minister, deferring to your need to not be brought into the Privilege Committee, because there seems to be some worry about coming to the Privilege Committee. Dissatisfaction, it may not be the grounds, but certainly not bringing information on the crash of Pakistan International Airline constitutes serious grounds for privilege. Both of your officials of the civil aviation and your own honorable self. However, if you are deeply uncomfortable, and there seems to be great resistance from all the halls of power here to not bring anybody to the Privilege Committee as a breach. Having said that, I will request the Civil Aviation Standing Committee Chairman, Senator Mushahidullah, to put it up again as a formal agenda item in the Aviation Committee. We can bring it up there because they said they were there. Now, the one thing that did not happen in that committee was a discussion on the air crash in the presence of the PIA CEO. उनकी अदम मौजूदगी हमने बार बार नोटिस की है. मिनिस्टर आ जाते हैं, अमला पूरा आ जाता है, उनमें खुला तजाद होता है, और जो जिसकी सदारत में ये एयर क्रैश हुआ है, जिस पर कोई खास डिस्कशन नहीं हुआ, बिकॉज उसके बाद तो पूरी एयरलाइन को गिरा दिया गया ना, पूरी एयरलाइन को गिरा दिया गया, और फिर कहा जा रहा है कि नहीं कोई प्रिविलेज नहीं ब्रीच हुआ, कुछ नहीं हुआ. मैं तो मुस्ताफी हो जाती. मैंने तो कहा था that I would have resigned after the crash as well as after PIA. What happened to PIA because of my officials? मैं नहीं कह रही कि इसमें मेरी या मिनिस्टर की कोताही होती, but in the finest traditions of democracy everywhere in the world, आपकी मिनिस्ट्री में ट्रेन क्रैश होता है, ज्यादा बड़ा होता है, एक के बाद दो होते हैं. हिंदुस्तान में भी रिजाइन कर जाते हैं रेलवे मिनिस्टर. यहाँ तो 100 हो चुके हैं, और इतने बड़े क्रैश के बाद मैं तो कहती कि हमें जरूरत नहीं है इस तरह के अमलों की, जो वहां बैठ के हमें दर्श दें कि नहीं हम सही हैं और इतनी लाइसेंसेस सही हैं. आज तक नहीं इन्होंने मुतय्यन किया who signs on what license. In that committee it was not answered. The information was not given on who signs what license, what is the process. Mustafa Khokar is not here. उसने बहुत देर कोशिश की, क्रॉस क्वेश्चनिंग, लिटरली लाइक अ लॉयर ऑन अ बेंच. नहीं हुआ. तो ये अगर इतना तकलीफ है कि प्रिविलेज भी ना हो, तो फिर वहां आ जाए. हमें किसी की जात से नहीं. आई फील particularly sad and sorry for a minister who has to have an amla sitting next to him arguing with him. Minister, आप उनको फारिग करें, ये आपकी सवाल को तो फारिग करें. अगर किसी का सर नहीं रोल होगा तो ये फिर बहुत बड़ा मजाक है पाकिस्तान के साथ, जमहूरियत के साथ, PIA के साथ, हमारे इदारों के साथ. मैं किसी के विच हंट पे नहीं हूं, बट आई एम अपॉल्ड कि कोई जू नहीं रेंगती है कहीं. हम अपनी प्रिविलेज, अपने परक्विजिट्स, अपने ओहदे, अपने सब कुछ रखना चाहते हैं. दुनिया जो चाहे करे, जो सवाल पूछा जाए. हम कमेटी में नहीं आएंगे, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही. इससे ज्यादा कौन सा ब्रीच ऑफ प्रिविलेज होता है कि मिनिस्टर और इदारा आपके जवाब ना दे सके. इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ सेटिस्फैक्शन. They bickered for 2.5 hours after the airline had crashed over the cause of why PIA. No, it wasn't, the air crash was never discussed because the PIA CEO is not answerable to the minister. It seemed that the civil aviation amla is not even answerable to. मुझे तो यही लग रहा था. आप किसी भी मेंबर से पूछ लें, लग तो यही रहा था. तो मुझे तो अफसोस हो रहा था कि ये मिनिस्टर के साथ कर क्या रहे हैं. And in that context, I suggested that, honorably, one should relieve oneself कि मेरे काबू में नहीं है ये लोग. तो अगर नहीं है और आपके जवाब में तजाद है, उसका यही मतलब होता है ना. आपका अमला भी खड़े होकर आपको यहाँ कॉन्ट्रडिक्ट करना शुरू करे एक हियरिंग में. हाउ डज दैट मेक यू लुक? यू शुड हैव वन एग्जैक्ट मैसेज for such a powerful event that has taken place, not only as a crash taken place, but the airline itself as an institution has been brought down to its knees. It will take years, and it's not just the airline. I want to contend that it is not just the airline. PIA is the national flag carrier. In my view, you brought the national flag on the ground. You had it grounded
You brought a reputational loss to it. Not yourself, Minister, I'm not attacking you, but your Amla and the super, आप कह लें कि पहली हुकूमतों ने किया, आप बेशक कह लें कि हमारी भर्तियों ने ये किया, लेकिन बार बार ये लाइसेंसेस की बात हुई, आप तो वैसे हमारी कोई बात नहीं सुनते हैं, आपने क्यों नहीं छांटी कर ली इन लाइसेंस की? क्या सिविल एविएशन आपको रिपोर्ट करता है कि नहीं? कौन इस मुल्क को चला रहा है? Who reports to who? Because it seems PIA doesn't. They don't even come when you are sitting there. You are the elected minister. ये आपका हक, अगर मैं मिनिस्टर हूं और मेरा अमला वहां जवाब देने नहीं आया, उसी दिन सबकी छुट्टी मैंने की थी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में डंके की चोट पर, और अगर उस पर पूछ नीच हुई, then I will resign. There are costs to that. There are costs to that, but you will go down in history. And we need to be making history because जिस तरह की काली तारीख यहाँ रकम हो रही है इस मुल्क में, उससे तो मुझे शर्म आ रही है, रोज रोज शर्म आ रही है कि यहाँ तो हम एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते। एक अमला बैठ के एयर क्रैश डिस्कस करने आया है, आप तो लाइसेंसेस नहीं डिस्कस, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपसे पीआईए के पूरे इदारती क्रैश की नहीं बात होने वाली थी, मगर आप सोचते, मैं तो सोचती कि दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव टू आंसर, एंड ऑब्वियसली यू नो दैट, मगर वहां पीआईए के एयर क्रैश की इतनी बड़ी सान्हे की बात हुई, सारी दुनिया में इसकी गूंज उठी, लेकिन आपके सीईओ वहां नहीं आए। ही इज अबव आंसरिंग अ पार्लियामेंट्री कमिटी। वी वर नॉट कम्युनिकेटेड व्हाई आफ्टर एन एयर क्रैश ही कुडंट कम, एंड बार बार ये हो रहा है, बार बार ही हो रहा है, वो अपना नंबर पीएस या बेचारे पीआर के बंदे को भेज देते हैं। मिनिस्टर जैसी हस्ती जब बैठी है और एयर क्रैश के बाद पहली मीटिंग हो रही है सिविल एविएशन की, नेशनल असेंबली में भी नहीं हुई है, तो आप क्यों नहीं जवाब दे होने के लिए वहां आए? एंड व्हाई डू यू अलाउ दिस काइंड ऑफ इंसल्ट टू टेक प्लेस? आपकी तजलील हो रही है तो हमारी भी हो रही है। आपकी हुई है तजलील उस दिन, माजरत के साथ मैं कहूंगी, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है टू बी हैरेंगिंग यू लाइक दिस, बट इट इज एन इंसल्ट टू पार्लियामेंट, टू पार्लियामेंटेरियंस, टू इलेक्टेड मिनिस्टर्स व्हाट हैपेंड दैट डे। आप टेप निकाल के देख लीजिए उस दिन क्या हुआ। इस तरह इससे नजदीक बैठे पूरा सिविल एविएशन का अमला कुछ और कह रहा है, मिनिस्टर को झुठला रहे हैं। आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट द वर्ड्स ऑफ द इलेक्टेड मिनिस्टर। नाउ हु हैज टेकन, अभी तक बात गोल मोल टेक्निकलिटीज में आगे पीछे हो रही है, किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है जो पीआईए एयर क्रैश की नंबर 1 और पीआईए के खुद वजाते खुद इंस्टीट्यूशनल फ्लैग कैरियर को जमीन बोस होना, किसने जिम्मेदारी? आई डोंट नो। जिम्मेदारी मीन सेइंग द बक स्टॉप्स विद मी। सो आई वांट टू नो चेयरमैन साहब, आई डिडंट वांट टू गो ऑन अबाउट पीआईए, आई स्टिल वांट टू नो कि जब हमारा नेशनल फ्लैग कैरियर जमीन पर खड़ा होता है, आप कह लें कि हम खराब थे, ना अहल थे, भर्तियां की थी, लेकिन कोई दानिस्ता तौर पर मिनिस्टर बैठ के ये नहीं देख सकता था कि उनके सामने ये कहा जा रहा है कि एयरलाइन गिर गई है, नोटिस पे नोटिस आ रहे हैं और सुबकी हो रही है, सुबकी हुई है सबको। मेरे दिल को तो बहुत लगा, आई एम श्योर आपको नहीं लगा। हु इज आंसरिंग? इज इट द प्राइम मिनिस्टर? इज इट गोइंग टू बी द मिनिस्टर? इज इट गोइंग टू बी द डीजी और द सेक्रेटरी? सिविल एविएशन इज द सेम पर्सन? इज इट सीईओ पीआईए? सारे के सारे 10 बरदार एक दूसरे पर बॉल फेंक रहे हैं। दिस इज व्हाट हैपेंड। दिस इज नॉट हाउ कंट्रीज और इंस्टीट्यूशंस रन। एयरलाइन तो नहीं चल सकेगी इस तरह अगर, और आप लोगों ने उस वक्त भी कोई आगे रोड मैप नहीं दिया कि हम इस तरह बहाली कर रहे हैं, इस तरह तो एयरलाइन नहीं चलेगी। एंड आई हैव नो कॉन्फिडेंस इन दिस काइंड ऑफ अमला। आई एम शॉक्ड कि मैं तो आई हूं बैठ के, फिर पीआईए मुझ पे सबने कहा प्लीज डोंट गो ऑन पीआईए, प्लीज टेक अ प्राइवेट एयरलाइन सीरीन और एयर ब्लू। मैंने कहा मैं क्या करूं, हमें आदत है, हम पीआईए से हैं लॉयल, हम तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी पीआईए से लेते थे। फिर मुझे कल किसी ने कहा वो एमिरेट्स तो चल रही है, सब आ रही है जा रही है, सिर्फ हमारी बेचारी पीआईए ग्राउंडेड है। ना, पीआईए जाएगी कहां बेचारी? नाउ आफ्टर अपना इमोशनल कैथारसिस मिनिस्ट्रीज तो नहीं करती,
मुझे याद है सात बार स्वेरन करके आए थे, मिनिस्टर बने थे हमारे साथ। पहली काबीना मीटिंग में, कैबिनेट ब्रीफिंग में, ही वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट, एक दफा सही होता है कहना कि दिस इज व्हाट आई हैव इनहेरिटेड। आई वाज सिटिंग विथ हिम एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। ऐसे डॉक्टर साहब ज्यादा मत कहिएगा, अब हमारी हुकूमत है। पहला दिन था, हमारी हुकूमत है अब, और अब आज से हमें जिम्मेदारी लेनी होगी। ही सेड यू आर क्वाइट राइट, ही कट इट शॉर्ट। ही सेड मुझे एक्सप्लेन करना है। आफ्टर दैट वी सेड हम ये बात ही नहीं करेंगे कि हमने ये इनहेरिट किया, ये तबाहकारियां मुशर्रफ हमें दे के गया, फला ये करके गया। दैट्स फॉर एकेडमिक्स टू डू। आपकी हुकूमत है, आप जिम्मेदारी लें। मुझे बताएं, ये प्रिविलेज मोशन ये पूछ रहा है कि हु इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज नो वन इन दैट एविएशन कमिटी आफ्टर that air crash took responsibility. Not even did they show up. That is a breach of my privilege. Why did they not show up to answer about an air crash where over 200 people died? Those pilots that went down on the crash, their licenses were not fake. वो तो मिनिस्टर ने खुद बड़े खुशउस्लूबी से जवाब दिया। But being tolerant of questioning is not enough. You have to take responsibility for for the people under you. That's all I want to say. There's no point carrying on. So, if the Senator Shari Rahman is willing to withdraw the privilege to take up the matter in the committee again, तो आप अगर उनको सेटिस्फाई कर दें कमेटी में तो इसकी जरूरत नहीं। सर मैंने तो खुद तजवीज दी है कि नेक्स्ट स्टैंडिंग कमेटी के एजेंडे में इस आइटम को ले आए, इन डिटेल डिस्कस कर लें हमसे। सेनेटर शेरी, आर यू ओके विद दैट मिनिस्टर्स ऑफर? बिकॉज आई मीन दिस प्रिविलेज का डिसीजन आपने मूव किया। सीईओ पीआईए मस्ट बी, आप उनको ताबे करें कि वो आए और आप। सर मैं उसकी प्रेजेंस भी इंश्योर करता हूँ। जी मुशाहिद साहब, सो शेरी द प्रिविलेज इज विथड्रॉन। ओके जी। मैं इसमें ये मिनिस्टर साहब भी बैठे हुए, इनके सामने एक दो बातें देखें। ये तो अभी जिस प्रिविलेज की बात हुई, मैं वो बात बताने लगा हूँ जो प्रिविलेज ब्रीच हो चुका है। मसलन चेयरमैन साहब, आप नहीं, संजरानी साहब को एक एप्लीकेशन आई कि वहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट हुई है पीआईए में। अच्छा, वो खैर उन्होंने यहाँ पे बात करके मेरे तरफ भेज दिया। वो लड़की थी एक, उसने भी मुझे भी भेजा। सारा लंबी चौड़ी कहानी है, बहरहाल ठीक है। अच्छा, अब जो ब्रीच प्रिविलेज ब्रीच हुआ वो पता क्या है? वो बंदा जिसने ये किया है ना, वो आज तक पेश नहीं हुआ स्टैंडिंग कमेटी में, बल्कि उस लड़की पर दबाव शबाव डाल के उससे वो दोबारा वो भी नहीं आई बेचारी। दबा दुबू लेंगे, ऊपर उनके ऊपर लगा हुआ। वो एयर मार्शल साहब का बड़ा खास आदमी है। अभी भी वो केस खत्म नहीं हुआ है, लेकिन वो पेश नहीं होता। अब वजीर आ जाएंगे, सेक्रेटरी आ जाएगा, वो इतना कोई अहम तरीन आदमी है जिसने वारदात डाली है या नहीं डाली, मैं इस चक्कर में नहीं हूं। लेकिन ये इन राइटिंग रिपोर्ट आई है, टेलीफोन भी आया है, ठीक है। तो ब्रीच तो हुआ ना कि वो आ ही नहीं रहा, वो आगे बताने को तैयार नहीं, वो मानता ही नहीं है। इससे बड़ा ब्रीच क्या है? सर आप इंश्योर करें ना कि जो आए कमेटी में, सारा मसला हल हो जाएगा अगर आप इंश्योर करेंगे। सर मैंने तो इंश्योर कर दी है कि वो आएंगे। जो आइटम रखना है एजेंडे में बुलाएं। नहीं देखें, मैं जो एक सेकंड देखें, मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूं ताकि इस पे ये तैयारी करें। ऐसे खाली बात नहीं है कि जी आ जाएंगे, आते हैं जाएंगे, ये मुझे पता है। फ्लोर ऑफ द हाउस पे कह रहे हैं मुशाहिद साहब, प्लीज। पता ही आ जाते हैं, मैं तो कब कह रहा हूँ। नहीं वो कह रहे हैं एवरीबडी एल्स हु इज रिक्वायर्ड विल कम। अब इससे ज्यादा तो यू कांट एक्सपेक्ट ऑनरेबल मिनिस्टर टू। मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी ब्रीचेज हो चुके हैं। एक मैंने बता दिया, अब इस पर अगली आप स्पेसिफिक ब्रीच जमा कराए ना मुशाहिद साहब। मेरी बात तो सुन ले, हल है ना, आपके सामने बातें हुई है ना। हल आपके पास नहीं है तो फिर आप किस लिए वजीर बने हैं भाई? शायद साहब ये मैंने एक मोशन मूव करना है जी। देखें मैं एक मिनट में, मेरी बात तो सुन लेना। आपको नोटिस में तो होना चाहिए, सारे लोगों को नोटिस में होना चाहिए कि ये हो क्या रहा है पीआईए में। मोहसिन नसीर साहब जरा 2 मिनट बात सुन लें। आप
डिस्कशन की ये कर रहे हैं, कॉलिंग अटेंशन था, जी जी उसका reply डिस्पोज ऑफ हो गया जी 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 उसके अलावा पब्लिक इंपॉर्टेंस पे इन्होंने बात करनी चाहिए, कर ली। जी, जी। इस तरह उठ के बार बार किसी की पगड़ी उछालना, इस तरह की बातें करना नहीं ऐसे मुनासिब नहीं है ना। ठीक है, आप स्टैंडिंग कमेटी में कोई इशू मुशाहिद साहब आप इसको कमेटी में ले लीजिएगा ना, उन्होंने कहा है कमेटी में ले लीजिए। आपकी हर बात का जवाब देंगे हम, आपकी तरह थोड़ा नहीं, इस तरह ना करें ना, इस तरह की गुफ्तगू आपसे जरा मुनासिब नहीं है। पूछ ले, मेरी बात जरा सी इधर उधर नहीं होती। मुशाहिद साहब सीबीआई ये का आदमी नहीं हूँ। मुशाहिदुल्लाह साहब अपनी कमेटी में आप ले लीजिएगा। सर ये कह रहा हूँ, देखे एक और फैसला हुआ, जी वो जो लोग निकले थे ना, इनके सामने हुआ है। उन्होंने कहा कि भाई उस पे, और वो सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने ये कहा था कि जी आप वो बनाए। अच्छा, उसमें सारे जो है ना उनकी डिग्रियां खराब नहीं है, कुछ डबल जेमेट्री के केस हैं, कुछ और केसेस हैं, मुख्तलिफ टाइप के केस हैं, कुछ के अदालतों ने फैसले हक में किए हैं। ये महीनों पुरानी बात है, ये फैसला हो चुका। उन्होंने कहा जी हम करेंगे, नहीं किया अभी तक। तो और क्या ब्रीच होता है, आप उसका जिम्मेदार कौन है? सर स्पेसिफिक ब्रीच फाइल करें ना अगर कोई है। अभी ये बच्चे वहां पे बेचारे बैठे हुए, छुट्टियां हुई हैं, नहीं हुआ। तो यही ब्रीचेज होते हैं ना, और क्या होते हैं? मैं यही कह रहा हूं कि इसको नहीं सीरियसली लेना चाहिए, बजाय इसके कि थैंक यू मुशाहिद जी। मुशाहिद साहब मोशन मूव करें। Compliment you, sir, for taking this initiative also, and also my other colleagues. I, Senator Mushahid Hussain Sayyid, move that under Rule 263 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012, 25, 29 and 133 of the said rules be dispensed with in order to move a resolution. It has been moved under Rule 263 of Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012 that the requirement of rules of 25, 29 and 133 of the said rules be dispensed with in order to move the resolution. Those who are in favor of the motion may say A. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the motion is carried.